Hello everyone, welcome to PT 79 plus series reading filling the blanks number 7. It means that 6 videos are already out there जो कि आप देख सकते हो, and in this 79 plus series we solve those questions which are highly predicted, highly repetitive so that आपको logics भी explain आए, you know that how to solve them and आपकी grammar के concepts भी improve हो. So that being said, let's get started. My name is Bharat Bridge. I have scored a perfect 90 in all the 10 skills of PT. Now students ask क्या सर हम भी कर सकते हैं, आपने कैसे किया? देन द आंसर इज यस, यू कैन ऑल्सो डू, बिकॉज जो स्ट्रैटेजीज मैं आपको बता रहा हूँ अगर आप भी अप्लाई करोगे यू कैन ऑल्सो स्कोर अ परफेक्ट 90. एंड सेकंड थिंग, यू हैव टू प्रैक्टिस विद द सॉफ्टवेयर. मार्वल पीटी का सॉफ्टवेयर इज पावर्ड बाय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, द सेम टेक्नोलॉजी विच पियर्सन यूजेस, जो आपके फाइनल एग्जाम एवेल्युएट करने के लिए यूज करती है टेक्नोलॉजी, वी ऑल्सो यूज द सेम टेक्नोलॉजी. एंड बहुत सारे स्टूडेंट्स का टारगेट अचीव होता है क्योंकि वो सही ढंग से प्रैक्टिस कर पाते हैं मार्वल पीटी के प्लेटफॉर्म पे. Before getting started with the topic, a lot of congratulations to students this week जिन्होंने अपना target score achieve किया है. And let that being said, let's get started. So PT reading integrated timer होता है, 32 to 41 minutes का होता है. You know that by now क्योंकि हमारी जो speaking है उसमें individual timers मिल जाते हैं, हमें writing में individual timers मिल जाते हैं, listening में summarize spoken text में individual timers मिल जाते हैं, but reading में सभी के सभी questions का timer इकट्ठा होता है. So आपको time management खुद करनी होती है. Another myth or doubt students have is this कि reading का score जो होता है, जो reading module वो attempt करते हैं, that is of 90 marks. The answer is no. We are going to see that is of around 45 to 47 marks, and there are 5 question types in reading. And best part is this, पहले reading का order shuffled होता था, कुछ random आते थे questions का order, but अब order fix हो गया है. So सबसे पहले questions आपको हमेशा reading and writing filling the blanks आएंगे. Second will be multiple choice multiple answers. Third will be reorder paragraphs. Fourth will be reading filling the blanks, and fifth will be multiple choice single answers. So this is the order जो आपको exam में आएगा, and this is the real scoring कि PT में 90 marks आपके रीडिंग में कैसे आते हैं. इफ यू सी, जो रीडिंग मॉड्यूल है हमारा वो सिर्फ और सिर्फ आपका इतने मार्क्स का है. सो लेट्स डू द मैथ्स. 22 प्लस 3 25, 25 प्लस 6 31, 31 प्लस 15 46 एंड 1 47. इफ यू सी 47 मार्क्स का और अराउंड 50% मार्क्स की ही रीडिंग होती है. बाकी मार्क्स आपके स्पीकिंग से आते हैं, रीडिंग के, राइटिंग से मार्क्स आते हैं और लिसनिंग से मार्क्स आते हैं. रीड अलाउड्स कंट्रीब्यूट 22 मार्क्स टू योर रीडिंग. समराइज रिटन टेक्स्ट राइटिंग में जो होता है दैट कंट्रीब्यूट 10 मार्क्स, एंड देन लिसनिंग में हाईलाइट करेक्ट समरी कंट्रीब्यूट्स 2 मार्क्स, and listening highlight incorrect words contribute approximately 9 marks. So this is how 90 of PT reading are scored. And one thing I want to tell you this, जो आप इसकी pronunciation है, हम इसको module नहीं कहते हैं. The pronunciation will be module, right? This is a pronunciation rule. जब भी DU आता है इकट्ठा, उसकी pronunciation j में, if you can understand written Hindi, it will be j या J में होती है. Another important concept for pronunciation. That's why जो students हमारे online coaching लेते हैं, and we have students from all over the world now. We have students from Australia, from New Zealand, UAE, India से तो बहुत सारे students हैं, but a few of students are from Nepal and Sri Lanka also. So इसीलिए आपको pronunciation lectures दिए जाते हैं क्योंकि हमारी pronunciation नहीं सही होती है. Those who are our elite members get grammar course, get pronunciation course. So those who sign up with us, who take coaching from us, उनकी हम grammar भी improve करवाते हैं, pronunciation भी improve करवाते हैं, because we want कि आपका 79 plus target first attempt में ही achieve हो when you have practiced with us. Now let's see, this is the reading filling the blank strategy. As I said कि आपको हर question का time अपने आप manage करना होता है. So with our artificial intelligence analysis plus big data analysis, we have found that you can spend approximately 2 to 2.5 minutes on each reading filling the blank. अब सबसे बड़ी mistake students क्या करते हैं, they try to read all words, they try to understand meanings of all words, and 2 to 2.5 minutes is not a sufficient time for doing that. And if you want to score 65 plus or 79 plus, this is not going to help you at all, and you have to skim your content. This is the right strategy, and there are separate lectures for our students who take coaching from us for skimming. We help them to develop their skimming skills. So अब हमारी reading filling the blank strategy is divided into 3 things. One is context, second one is lexical resource or LEX, and the third one is grammar. So reading content को आप skimming भी कह सकते हैं. Then there is a forward reading, there is backward reading. All these concepts are explained in detail in
in our lectures. And then you have to understand the tone also. Tone is very important. Positive tone hai, negative tone hai, neutral tone hai. We have solved previously reading filling the blanks on the basis of tones. Then collocations बहुत important है. Knowledge of collocations, phrasal verbs की knowledge होना बहुत important है. And vocab is something which you build slowly and steadily, but we are going to start providing our elite members course of collocations and phrasal verbs also. Grammar का course तो already हम अपने elite members को provide करते हैं. In grammar we cover tenses. There are approximately 25 to 28 lectures of grammar जिसमें हम tenses cover करते हैं, parts of speech cover करते हैं, parallelism cover करते हैं, active passive prepositions, modal, subject verb agreement. Because if you want to score 79 plus in reading, grammar is very important. And with our strategy, speaking easy हो गई है, listening easy है, writing तो बहुत easy है, but still you have to put some efforts in your reading. For that you have to make sure that आपको grammar की knowledge हो, lexical resource की knowledge हो. And our software provides you two modes. One is exam mode and second one is time mode. Exam mode जब आप on करते हो, जो questions बहुत ज़्यादा predicted होते हैं, repeated होते हैं, वो show होने शुरू हो जाते हैं. तो what you can do is you can simply cram those answers because paper में उनके आने की probability बहुत high होती है. And then second one is your time mode. जैसे ही आप time mode को on करते हो, आपकी time based practice शुरू हो जाती है. शुरू में you are not used to things, you are not comfortable with the PTE platform, so what you do is you practice without any time frame. Means आप एक reading filling the blank को 5 minutes भी ले सकते हो solve करने के लिए, but when you turn this mode on you will be only given to 2 to 2.5 minutes for solving reading filling the blanks. And then you get used to that time bound pressure कि आपको पेपर में भी उतने टाइम में ही सॉल्व करना है और आप प्रैक्टिस करते हुए भी उतने टाइम में ही सॉल्व कर रहे हो. सो यू गेट आइडिया ऑफ द थिंग्स कि कितना टाइम आप स्पेंड कर सकते हो. एंड व्हाट हैपेंस जब टाइम रन आउट हो जाता है, देन द आंसर इज ऑटोमेटिकली सबमिटेड, जिसके कारण आपको रियलाइज होता है कि यार मुझे थोड़ा फास्ट करना है. एंड दिस इज हाउ योर टाइम मैनेजमेंट स्किल्स आर बिल्ट बिकॉज दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर क्रैकिंग PT. And then this is the topic. As usual, I'm going to give you 30 seconds to skim through this, and after 30 seconds I will start explaining it. Most of us believe that when we are making decisions about money, we are being clear-headed and sensible and assume that any rational person would dash in the same way and make the same decisions. Okay, so अब आप एक मेरी बात बताइए, इसमें अब आपको थोड़ा सा आइडिया हो गया कि हाँ मनी के बारे में बात हो रही है, राइट? अब रैशनल पर्सन है वुड समथिंग इन सेम वे. अब एक चीज है, वुड के साथ आपको पता है क्या आता है. जैसे एग्जांपल, वुड यू डू दिस, वुड यू लाइक दिस, क्या आता है वुड के साथ? वर्ब. दैट्स व्हाई पार्ट्स ऑफ स्पीच की नॉलेज होना बहुत जरूरी है. एंड वी हैव 3 लेक्चर्स ऑन पार्ट्स ऑफ स्पीच ताकि आपको समझ आए कौन सी चीज क्या है. एंड पार्ट्स ऑफ स्पीच के बेसिस पे ही आप रीडिंग फिलिंग द ब्लैंक्स बहुत बार सॉल्व कर सकते हो, लाइक वी हैव सीन. अब ये आपको पता है वुड के साथ क्या आती है? वर्ब. अब इनमें से देखते हैं सबसे पहले हमारी कौन कौन सी वर्ब है. आंसर वर्ब नहीं है, राइट? सो वी आर गोइंग टू एलिमिनेट दिस. दिस इज नोन एज प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन. प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन अगेन इंपॉर्टेंट कंसेप्ट वी टीच आवर स्टूडेंट्स इन आवर ऑनलाइन कोचिंग. एंड ये सारे कंसेप्ट जो यहाँ पे मैं आपको फ्रेगमेंटेड बता रहा हूँ, ऑनलाइन कोचिंग में सारे कंसेप्ट आपको इकट्ठे बताए जाते हैं विद द एप्लीकेशन सो दैट इट गेट्स इजी for you to understand the concepts. So behave is again a verb. Yes, behave is a verb. Choices not a verb. Conclusion not a verb. Economical adjective है. And by the way, these are your nouns. Choice is noun, conclusion may be noun. Financial adjective है. Ideas और idea noun है. अब अगर आपको parts of speech की knowledge है, तो अगर आपको समझ भी नहीं आ रहा है कि यहाँ पे क्या fill up होगा, सिर्फ parts of speech grammar के basis पे आप यहाँ पे verb fill कर सकते हो, जो कि इसमें एक ही है, which is behave. But अगर आप उसको दूसरी explanation को समझिए, तो obviously that any rational person will behave in the same way. क्योंकि जब आप decisions ले रहे हो, राइट, डिसीजंस के लिए आपका बिहेवियर डिटरमिन होता है कि कोई भी शांत दिमाग वाला, सही दिमाग वाला पर्सन है वो कैसे बिहेव करेगा, राइट? इसलिए यहाँ पे बिहेव आया. सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज वी आर गोइंग टू पुट बिहेव ओवर हियर एंड गोइंग टू मूव नेक्स्ट. बट आर something are always based on the private logic of our on something mindset. अब
इसको सॉल्व करने के लिए अब आप मुझे बताइए यहाँ पे क्या बात हो रही है, डिसीजंस की बात हो रही है, राइट। सो अगर अब आप बैकवर्ड रीडिंग से आपने एक आइडिया लगाया कि यार यहाँ पे डिसीजंस की बात हो रही है, तो डिसीजंस के साथ यहाँ पे क्या आता है, जब आप डिसीजंस की बात करते हो तो वो क्या होते हैं, चॉइसेस। आप चॉइसेस मेक कर रहे होते हो, बट आर आंसर आर ऑलवेज बेस्ड नहीं, हम यहाँ पे कोई क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर रहे, कंक्लूजन ऑलवेज बेस्ड नो। नाउ वी आर व्हाट वी आर डूइंग इज वी आर डूइंग प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन ऑल्सो। कंक्लूजन भी नहीं हो सकता, इकोनॉमिकल आर ऑलवेज बेस्ड वैसे ही नहीं हो सकता, इतना आपको पता है। यहाँ पे क्या आएगा, एक नाउन आएगा, एंड बोथ ऑफ देम आर एडजेक्टिव्स, तो ये तो वैसे ही क्रॉस आउट हो गए। आइडियाज हो सकता है, बट आर आइडियाज आर ऑलवेज बेस्ड, हम आइडियाज तो थोड़ी किसी बेसिस के ऊपर, लॉजिक्स के ऊपर लेके जाते हैं, हम अपने चॉइसेस को किसी लॉजिक के ऊपर लेके जाते हैं कि मैंने इसलिए ये चीज चूज की या ये पाथ चूज किया। नाउ what we have done is we have selected choices over here, and now we are moving on to the next filling the blank, which is something. अब mindset से पहले क्या आएगा, mindset is a noun। अब mindset से पहले हमारा अपना डैश सोच, राइट। अब यहाँ पे क्या आएगा, इतना आपको क्लियर हो गया होगा। जब मैं कह रहा हूँ यहाँ पे एडजेक्टिव आएगा, तो आपको पता है यहाँ पे आपके पास सिर्फ दो ऑप्शंस बचे हैं एडजेक्टिव्स के लिए, इकोनॉमिकल और फाइनेंशियल। ओके, अब इकोनॉमिकल और फाइनेंशियल में स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा कंफ्यूज कर सकते हैं वैसे भी, बट आर ओन आंसर माइंडसेट वैसे ही नहीं आ सकता, कंक्लूजन माइंडसेट वैसे ही नहीं आ सकता, आइडियाज माइंडसेट वैसे ही नहीं आ सकता। सो वी हैव एलिमिनेटेड दैट ऑल्सो। सो यहाँ पे इकोनॉमिकल और फाइनेंशियल बच गया। अब इकोनॉमिकल क्या होता है, दैट uses less fuel, less money. Yes, economical का मतलब ये होता है anything or any person who uses less fuel, less money. But financial का मतलब is related to money. तो हमारा mindset क्या होगा, related to money, right? हम ये थोड़ी है कि हमारे mindset से हम कम पैसे खर्च रहे हैं, no, हमारे फाइनेंशियल माइंडसेट, राइट। सो यहाँ पे क्या फिट होगा, राइट आंसर क्या होगा, फाइनेंशियल। ओके, आप बिलीव्स अबाउट मनी, क्योंकि यहाँ पे बिलीव्स आ रहे हैं, राइट। सो इसीलिए आपके यहाँ पे पहले क्या आएगा, फाइनेंशियल, इकोनॉमिकल नहीं आ सकता। नो टू पीपल आर द सेम, इवन व्हेन टू पीपल कम टू द सेम समथिंग, राइट, they have probably used quite different logical path। अब आपको पाथ, रास्ते बता चल रहे हैं, एक ने ये रास्ता चुना है, एक ने ये रास्ता चुना है, चाहे दो लोगों ने एक रास्ता चुना है, बट उनकी मंजिल, एंड क्या होता है, सेम। और वैसे भी कम टू द सेम क्या होता है, कंक्लूजन, राइट। अगर हम इस वर्ड्स को ऐसे भी यूज करें, आफ्टर रिसर्चिंग एवरीथिंग आई हैव कम टू द कंक्लूजन, राइट। सो यहाँ पे आप कंक्लूड कर रहे होते हो, मंजिल है, मंजिल इज समथिंग विच इज एंड, एंड दैट द सिनोनिम फॉर दैट ओवर हियर इज कंक्लूजन। सो इवन व्हेन टू पीपल कम टू द सेम कंक्लूजन, नतीजा दोनों का सेम है, बट उनके रास्ते अलग अलग हैं। सो दिस इज दैट मीनिंग। अगर मैं इसको हिंदी में ट्रांसलेट करूं, सो यहाँ पे आंसर नहीं हो सकता, क्योंकि स्टूडेंट्स बहुत बार कंक्लूजन और आंसर को मिक्स कर देते हैं। कम टू द सेम आंसर नहीं हो सकता, हमेशा हम क्या फ्रेजल वर्ब क्या कहते हैं, कमिंग टू द सेम कंक्लूजन, लॉजिकल एंड, राइट। यहाँ पे पाथ की बात हो रही है, रस्तों की बात हो रही है। तो यू सॉ हाउ विद द यूज ऑफ ग्रामर वी वर एबल टू सॉल्व दिस विद इन 2 or 2.5 minutes, and let's see if the answers are correct. Yes, all the answers which we have selected are correct, and always remember we have 2 or 2.5 minutes. अब first 30 to 60 seconds में आपको क्या करना होता है, you have to skim the content, और उसके बाद जो टाइम है उसमें आपको क्लूज ढूंढने हैं। जैसे हमने इसमें क्लूज ढूंढे पार्ट्स ऑफ स्पीच के बेसिस पे कि कहाँ पे वर्ब फिट होगी, कहाँ पे एडजेक्टिव फिट होगा, देन आपको पॉइंटर्स और प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन, यू हैव सीन हम कैसे एलिमिनेट करते रहे कि यार अगर ये वर्ब है नहीं है, ये एडजेक्टिव है नहीं है, उनके बेसिस पे आंसर्स फाइंड आउट करना और इजी हो जाता है। एंड ऑलवेज रिमेंबर, जितनी भी आपको मैं स्ट्रैटेजीज बता रहा हूँ, दोज आर वैलिडेटेड एंड प्रूवन, राइट। वी ओनली टीच वैलिडेटेड एंड प्रूवन स्ट्रैटेजीज। जैसे मैंने आज आपको ये पार्ट्स ऑफ स्पीच की स्ट्रैटेजी बताई, प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन की स्ट्रैटेजी बताई, या फिर स्पीकिंग की स्ट्रैटेजीज हैं हमारी, राइटिंग की स्ट्रैटेजीज हैं, लिसनिंग की स्ट्रैटेजीज हैं। ऑल द स्ट्रैटेजीज आर वैलिडेटेड एंड प्रूवन, एंड कंसिडर मार्वल पीटी एज द सेंटर ऑफ पीटी यूनिवर्स। सबसे पहले आप कंसेप्ट्स को अंडरस्टैंड करोगे, जैसे आज मैंने आपको कुछ कंसेप्ट्स बताए, यू हैव लर्न दोज कंसेप्ट, देन यू ऑन आवर सॉफ्टवेयर मार्वल पीटी के सॉफ्टवेयर पे यू आर गोइंग टू इम्प्लीमेंट देम, एंड देन यू आर गोइंग टू परफेक्ट देम, एंड
and with feedback which we provide feedback to your writing, to your listening, to your speaking, ताकि आपको पता चले आपको improvements कैसे करनी है. Then you are able to achieve your target score, and this is a trophy which you have to win. This is your target score, which can be 79 plus, 65 plus or 58 plus. When you are not following or modifying our strategies, जैसे आज हमने कुछ strategies आपको बताई, but अगर आप उनको modify कर रहे हो, नहीं follow कर रहे हो, you will not be able to win this trophy in your first attempt. But if you are following those strategies, you will be able to win the trophy in first attempt. And learning a language is like going to gym. The brain needs exercise and brain needs a repetitive exercise for it to डेवलप. एंड जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना बेटर होगा. जैसे मैंने आपको कुछ कंसेप्ट्स आज बताए हैं, आपको उनको इम्प्लीमेंट करना है, समझना है, एंड उसके बाद आपको फीडबैक चाहिए होती है. एंड आवर सॉफ्टवेयर मार्वल पीटी सॉफ्टवेयर प्रोवाइड्स फीडबैक टू यू. मी एंड माय टीम प्रोवाइड मैनुअल फीडबैक टू योर स्पीकिंग क्वेश्चंस, writing questions, listening questions. So that's why you improve and can achieve your target score. If you have any questions or doubt, you can WhatsApp us at 8699121121 for our online coachings also, or if you want to attend our coaching in institute. And do not forget to subscribe to our channel, because हम ऐसी informative videos, educational videos on a daily basis put up करते हैं, and so that you can get the notification first of all to improve your PT skills, English skills. We give wings to your dreams.